Students, so we are back with our second session of the networking chapter. In the previous class, what we learned that what is networking, what is the need of networking, কেন networking আনতে হয়েছিল পৃথিবীতে, what was the reason for the internet that we use today, ঠিক है ना? Then we learned about that what are the switching techniques, what do you mean by switching? Switching means to connect. So there are switching techniques, circuit switching, message switching and packet switching. Today what we are going to start is with the network channels. Now what are these channel? Channel means the medium through which the network is being operated. The network through which it works is known as channel or medium. Now, what are the channel types? The channels of two types. Guided medium or guided channel and unguided medium or unguided channel. What is guided channel? Guided channel means wired network. Means you are having a fixed path. यहां से निकलना है, यहां पे खत्म करना है. You are being guided by a wire कि भाई आप यहां से शुरू कीजिए, यहां पे खत्म कीजिए. A guide is there, a wire is there. But what about wireless? Wireless का क्या है? खाली एमिटर से हमको मतलब है, कहां से रेडिएशन या कहां से हमको वेव्स निकल रहे हैं, कहां जाएंगे, कौन उसको रिसीव करेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है. Anyone and everyone can access that wave or anyone can access that information. So it is called a wireless or unguided medium. समझ में आया? Guided और unguided क्यों ये word use किया? Guided means there is a path कि आप इस guide के थ्रू ही जाएंगे, आप इस path के थ्रू ही जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे. और wireless means unguided, आप path के बाहर भी निकल सकते हैं. These are two types. अब इसका further type है, क्या है? सबसे पहले guided का हम guided यानी कि wire, इसका हम टाइप बताएंगे. फिर अनगाइडेड, वायर्ड, अनगाइडेड, वायरलेस, इसका टाइप. व्हाट आर द वायर्ड टाइप्स? द फर्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर केबल. द सेकेंड वन इज द कोएक्सियल केबल. And third one is OFC or optical fiber cable. In wireless, we have infrareds. We have radio waves, microwaves, and finally satellite link. These are the guided and unguided media. Now, eagle key. What are the function of these? Let me tell you one by one. The first one, the twisted pair cable. Twisted pair cable the ordinary cable যেটা wire যেটা আমাদের ঘরে ইউজ করি. Suppose this one. This is the twisted pair cable. I have two wires, red and black. They can be easily used for transmitting electricity. The last class I told that the signal that is sent by my computer must be electrical signal so that it can travel through wire. So I need plain electrical wires. So this twisted pair is the best example of electrical wires. They can carry electricity through them. So this is the very cheap way of getting my network connected, but there is a problem with that. What is the problem? Sir, this twisted pair cable, first of all, that can be cut and remodified or rechanneled any time. तार जा रहा है, बीच में काट के वहां से नया तार निकाल दिया, तो मेरा तार कोई, मेरा सिग्नल या मेरा इंफॉर्मेशन कोई दूसरा आदमी भी शेयर कर सकता है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेटा थेफ्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका. कोई भी इसको एक्सेस कर लेगा. नेक्स्ट, इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं रहता, जिसके कारण अगर कोई बाहर में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहा, मैग्नेटिक वेव्स रहा या वेदर डिस्टर्बेंसेस रहा, तो वो नॉइज, बोले ना पीछे नॉइज, द अनवांटेड सिग्नल दैट इज कैरिड बाय द वायर, वो नॉइज भी आ जाएगा हमारे वायर में. ये प्रॉब्लम है ट्विस्टेड पेयर. फिर आता है कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल मतलब हमारा जो
केबल का तार होता है। हैव यू सीन द केबल वायर? कैसा होता है केबल वायर? एक पतला सा कॉपर वायर रहता है अंदर में, अ वायर इज बीइंग देयर दिस इज थिक एंड सिंगल वायर इज देयर, कॉपर वायर, उसके ऊपर से यू विल फाइंड अ प्लास्टिक कोटिंग, एक प्लास्टिक कोटिंग रहता है ना, देन यू आर हैविंग अ सिल्वर फॉइल ओवर इट, सिल्वर कलर्ड पेपर रहता है, फिर वायर मेस रहता है ना, एक वायर मेस लाइक दिस, वायर मेस इज देयर, फिर उसके ऊपर एक और पतला सा प्लास्टिक कवरिंग रहता है, उसके ऊपर से एक मोटा एक जैकेट रहता है काला लेयर, ऐसा रहता है ना। द केबल कनेक्शन दैट यू गेट इन योर होम, केबल टीवी, ऐसा रहता है वायर, एक ही तार रहता है अंदर में मोटा वाला, बिकॉज एज द थिकनेस ऑफ द वायर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, हेंस मोर अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी फ्लोड, रेजिस्टेंस कम है तो इसका स्पीड इससे बहुत ज्यादा होगा ट्विस्टेड पेयर से। और सर जैसे इतना सारा इसका लेयर है सर, लेयर बाय लेयर इसका रखा हुआ है, मतलब बाहर से कोई इंटरफेरेंस या नॉइज घुसने का चांसेस नहीं है, सबसे पहला बड़ा बात। लेकिन ये भी तो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ना, बीच में से कहीं भी तोड़ ताड़ के इसका मतलब एक सिग्नल हम बाहर निकाल सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मतलब ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल में ये प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों में एक कॉमन एडवांटेज क्या है कि दे आर वेरी इजी टू यूज एंड चीप। ये तो बहुत मतलब इसके तुलना में दिस इज कॉस्टलियर, बट है तो दोनों ही सस्ता ओएफसी के तुलना में, और यूज करने में बस बड़ा आसान है सर, कहीं नहीं, बस तार जोड़ दो, सेलोटेप लगा दो, हो गया काम खत्म। तो इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए वी गॉट दिस वन ओएफसी। ओएफसी हैज एडवांटेज ही एडवांटेज, कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है, सिर्फ दो छोड़ के। पहला डिसएडवांटेज बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, वो साधारण आदमी नेटवर्किंग करना चाहे तो ओएफसी नहीं लगा पाएगा, वेरी कॉस्टली। और दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, कांच का बना हुआ ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या है ऑप्टिकल? ऑप्टिकल मींस लाइट, लाइट, हाँ इसमें लाइट ट्रेवल करता है, इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करता है, इसमें लाइट ट्रेवल करता है। मेरे बाल जितना पतला पतला, हेयर लाइक मतलब थिन वायर्स होते हैं ऑफ ग्लास, दे आर सॉलिड वायर्स मेड ऑफ ग्लास। तो और ये ग्लास ऐसे चीज से बना हुआ है कि इट कैन हैव अ वेरी लो क्रिटिकल एंगल। क्लास 10 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल याद करो। व्हाट वाज क्रिटिकल एंगल? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मतलब कि लाइट जैसे इसके थ्रू जाएगा ये बाहर निकलेगा नहीं, ऐसे अंदर 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 ऐसे ऐसे ये लाइट रिफ्लेक्ट करते रहेगा और लाइट ट्रेवल करते रहेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। This is how my OFC work. It works on the principles of total internal reflection. ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो अच्छा आसानी से समझ में आता होगा, बिकॉज इन फिजिक्स यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो कॉमर्स वाले हैं क्लास 10 तो पढ़े हो भाई, क्लास 10 में था, उसको याद करके देखो। सो दैट इज राइट इज वेरी गुड, क्योंकि लाइट है, लाइट ना बाहर निकलेगा ना अंदर, क्योंकि वो एक तार के थ्रू एक वायर में जा रहा है, थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करते हुए जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो बाहर नहीं निकलेगा। एज ए रिजल्ट ना बाहर का चीज अंदर घुसेगा ना अंदर का चीज बाहर घुसेगा, कोई तरह का नॉइज इंटरफेरेंस, जीरो नॉइज एंड इंटरफेरेंस। लाइट का स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन इमेजिन ऑफ, इतना हाई स्पीड में ट्रेवल करता है। और तीसरा चीज है कि ये लाइट है भाई, ये तो लाइट एक तार है कांच का, अगर हम बीच में से तो तोड़ के निकालना चाहे तो कांच उड़ेगा, पूरा सिग्नल टूट जाए। मींस इसको हैक या इसको बीच में ट्रेस नहीं किया जा सकता, हम बीच में निकाल के सिग्नल ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको करने के लिए दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, बीच में हमको तार निकालना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल इन अ वेरी इजी वे। दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट सिक्योर, देयर स्पीड इज वेरी हाई, दे हैव नो नॉइज, दे कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, सब एडवांटेज है। सिर्फ एक प्रॉब्लम, महंगा है बहुत सर। ये कितना मिलेगा? ये 5 रुपए 6 रुपए पर मीटर मिलता है, ये मिलता है 30 रुपया पर मीटर, ये मिलता है लगभग 2500 रुपया पर मीटर, 2500 पर मीटर, इतना सा 1 मीटर, इतना का दाम है 2500 और 3000 रुपीज। अब सोचो कितना ओएफसी लगेगा या हमको यहां से वहां जोड़ना, वेरी कॉस्टली। मेंटेनेंस भी है, कांच का पतला पतला तार है, टूट गया तो उसको तो जोड़ा नहीं सकता, पूरा केबल चेंज करना पड़ता है। 90% ऑफ द वर्ल्ड्स नेटवर्क इज मेड ऑफ ओएफसी। मतलब अगर हम यहां से अमेरिका में कोई अगर मेल भेजें, मत सोचो कि वायरलेस जा रहा है, वो वायर्ड जा रहा है। किसके थ्रू? ओएफसी के थ्रू। ओएफसी समंदर के अंदर, जमीन के अंदर सब गड्ढा खोद के सब डाला हुआ है,
विश्वास नहीं आता तो गूगल खोलो, गूगल में जाके जस्ट एक बार चेक करो OFC नेटवर्क अंडर सी, तुमको बहुत सारा पिक्चर्स और बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनगाइडेड और वायरलेस मीडियम। वायरलेस मीडियम में सबसे पहले क्या है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रे, कभी रिमोट यूज किया है टीवी का? रिमोट ये इंफ्रारेड पे काम करता है। मीन्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अगर हमको कोई ट्रैवल कराना हो तो हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा दूर से काम नहीं करेंगे। और एक और प्रॉब्लम, दे वर्क इन द लाइन ऑफ साइट। अब टीवी का रिमोट सीधे काम की जाए, वैसे घुमा के काम कीजिए, काम नहीं करेगा। ये है इसका प्रॉब्लम, इंफ्रारेड का ये प्रॉब्लम। लेकिन इज वेरी रिमोट टेक्निक। पहले के मोबाइल में पता नहीं आप लोग मोबाइल देखे होंगे, आप लोग जन्म हुआ है नहीं, दैट्स आल्सो आई डोंट नो। इन 2003 और इन 2004 जब ब्लूटूथ इतना पॉपुलर नहीं था, वाईफाई तो आया ही नहीं था, तब के जमाने में इंफ्रारेड चलता था, मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट करना। बहुत पुराना टेक्निक है। फिर आई हैड गॉट रेडियो वेव्स। ये इंफ्रारेड का प्रॉब्लम ये था कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता था, ज्यादा बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता था। रेडियो वेव्स क्या है? दे कैन ट्रेवल वेरी लॉन्ग। लॉन्ग तो छोड़ दो, दे कैन इवन ट्रेवल बिटवीन द वॉल्स। दीवार, अगर बीच में दीवार खड़ा है, कोई रेस्ट्रिक्शन है, उसको भी ये पार कर जाएगा। रेडियो, हम लोग रेडियो सुनते नहीं, AM FM, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, दीवार के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका बैंडविड्थ ज्यादा नहीं है। सर बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ द टोटल डेटा, मतलब पूरा थिकनेस ऑफ द डेटा दैट इट कैन कैरी। इसका थिकनेस और डेटा कैरी करने का रेंज बहुत पतला है। सिर्फ एक ही जगह डेटा वो ट्रैवल कर, मतलब वो कैरी कर सकता है। आइदर सिर्फ वॉइस ट्रैवल करेगा, या फिर सिर्फ डेटा ट्रैवल करेगा, या फिर सिर्फ एक कोई लिंक ट्रैवल करेगा। हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए एक ही तार में हम सब तरह का डेटा को, बहुत सारे डेटा एक बार में ट्रैवल करा सकते। ये इसमें पॉसिबल है। एक ही तरह का डेटा ट्रैवल करेगा और एक टाइम में एक ही डेटा ट्रैवल करेगा, रेडियो वेव्स। ये इस तरह का प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए आया माइक्रोवेव्स, जो हम लोग अभी यूज करते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब क्या है? सब है ये माइक्रोवेव्स का एडवांटेज। माइक्रोवेव्स क्या है? दे कैन पेनिट्रेट डीप, अंदर तक, मतलब कि हमको ब्लूटूथ से कोई डेटा सेंड करना है, थोड़े हमको सीधे बैठना है। हम उस रूम में हैं, यहां से भी करेंगे चलेगा। वाईफाई अंदर है, हम बाहर से चलेगा। स्ट्रॉन्ग राउटर अगर वाईफाई में लगा हो तो हमको 100 मीटर 200 मीटर दूर से भी वाईफाई चलेगा। बीच में पत्थर हो, पेड़ हो, डजंट मैटर्स, वो हमको ठीक मिलेगा। कैसे? बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट, दे हैव अ लार्ज ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस। नॉट ओनली दैट, दे हैव अ थिक बैंडविड्थ, बहुत मोटा बैंडविड्थ है, मतलब कि उसमें बहुत सारा डेटा वो कैरी करने की एबिलिटी रखता है वो माइक्रोवेव। दैट्स व्हाई आजकल देखो ना, वाईफाई के थ्रू कितना हाई स्पीड में डेटा ट्रैवल करता है। जो हम लोग शेयर इट, जेंडर यूज करते, सब तो ये यूज करता है, माइक्रोवेव वाईफाई को यूज करता है, कितना जल्दी डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन वही बात है, सबका एक रेंज होता है। माइक्रोवेव भी एक पर्टिकुलर रेंज के बाद जाना बंद कर देता है। 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, बस खत्म। 1 किलोमीटर के बाद उसके बाद कैसे ले जाए? सैटेलाइट लिंक। सैटेलाइट क्या करता है? नाम से ही लग रहा है सैटेलाइट मतलब डायरेक्टली फ्रॉम स्पेस। यस, हम जो सिग्नल सेंड करते हैं वो डायरेक्टली स्पेस में ट्रेवल करता है। स्पेस में सैटेलाइट है, वो हमको रिसीव करता है। द सिग्नल दैट वी सेंड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट इज नोन एज अपलिंक। अपलिंक मतलब ऊपर में लिंक सेंड करना। अब वो क्या करेगा? उसको कैच करेगा। अब देखेगा भाई ये नेटवर्क हमको किसको देना है, किसको भेजना है। अब ये क्या करेगा? ये किसी और को सेंड करेगा। सैटेलाइट फिर किसी और को कांटेक्ट करेगा, भाई आपके लिए कोई मैसेज आया, लीजिए। हम लोग भी तो जो फोन यूज करते हैं, सेल फोन, सैटेलाइट है उसमें, सैटेलाइट भी है, ये माइक्रोवेव भी है ना। हम लोग अपना सिग्नल कहां तक पहुंचाते हैं? मैक्सिमम टावर तक। उस टावर के बाद उसको रेंज फिर वो नहीं आता। टावर इसलिए अगर दूर चला जाए, नो टावर, नो सिग्नल, सिग्नल ही नहीं है। हमारा रेंज मैक्सिमम टावर तक जाएगा। टावर तक हमारा सिग्नल चला गया, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जितना रेंज है पता नहीं कितना होगा। अब ये टावर की जिम्मेवारी है कि टावर से सैटेलाइट के पास लिंक जाए। अब वो सैटेलाइट क्या करेगा? वो सैटेलाइट फिर दूसरे टावर को कॉन्टेक्ट करेगा, भाई तुम्हारे लिए कॉल है, और वो टावर फिर इससे कनेक्ट करेगा, भाई आपको कॉल आया। मतलब ऐसे घूम के जा रहा है नेटवर्क। सैटेलाइट जो सिग्नल ऊपर, मतलब फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट गया, वो अपलिंक, और जो सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट टू द अर्थ आया, वो डाउन लिंक। बस बहुत अच्छा है। तो सैटेलाइट लिंक कहीं भी लग सकता है, पत्थर हो, पर्वत हो, समंदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ये काम करेगा। करेक्ट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, महंगा समझते हो एक सैटेलाइट लॉन्च करना। आई नीड ए स्पेस शटल। बहुत प्रॉब्लम है इस सैटेलाइट लॉन्च करने। हम लोग जो क्या सोचते हैं, एयरटेल का अलग से सैटेलाइट लगा हुआ है, इतना महंगा नहीं है भारतीय मित्तल, इतना अमीर नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है कि अपना सैटेलाइट खरीद सके। तो कहां से सर?
अरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ऊपर में, उसको रेंट पे लेता है वो इसरो के साथ। इसरो सेंड करता है सैटेलाइट ऊपर में, और डिफरेंट जो कंपनीज है उसका एक बैंडविड्थ, उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उधार में लेता है कि भाई हमको ये वाला फ्रीक्वेंसी से हम बात करेंगे। समझा? इसरो ऐसे ही सैटेलाइट को सेंड करता है कि उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी एक साथ काम कर सके। ये फ्रीक्वेंसी वोडाफोन को दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी जियो को दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी एयरटेल को दे दिया कि भाई तुम लोग इस फ्रीक्वेंसी में काम करो। किसी को इतना पैसा नहीं कि अपना अपना वो सैटेलाइट लगा कर बैठे। सैटेलाइट का मेन फंक्शन मालूम है कहां है? इट इज यूज इन ब्रॉडकास्टिंग। क्या है सर ब्रॉडकास्टिंग? मतलब जैसे कि टीवी में अभी तो आईपीएल तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप हो या कोई ऐसा कोई चीज हो जो एक साथ बहुत सारे कंट्रीज में हमको एक साथ स्प्रेड करना है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल का अगर वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप उतना पॉपुलर नहीं है, पहले वो भी था, अभी तो उतना भी क्रेज खत्म हो गया क्रिकेट का। लेकिन फुटबॉल का अगर हम बात करें, फुटबॉल के वर्ल्ड कप में बहुत सारे कंट्रीज भी एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड वॉचेस द फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो अब बताओ तुम, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो तो रहा होगा कोई एक वेन्यू पे, कोई एक जगह पे, लेकिन वो सिग्नल एट द सेम टाइम लाइव ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में रिले होता है। कैसे होता है? ये सैटेलाइट के थ्रू। एक जन ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसको सेंड कर दिया सीधे सैटेलाइट के ऊपर। अब नाउ द वर्क ऑफ सैटेलाइट की वो एक साथ वो बाकी जितने सारे टावर्स हैं, जितने सारे सैटेलाइट है उस कंट्री के, सबको एक साथ रिले कर देगा। दैट इज हाउ माई सैटेलाइट लिंक इज यूजफुल। बट सैटेलाइट लिंक की ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते बिकॉज इज वेरी 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 कॉस्टली। समझ में आया? हाउ माई सिग्नल इज बीइंग सेंट थ्रू वायर एंड विदाउट वायर। इसको कहते हैं हम लोग चैनल्स, नेटवर्क चैनल्स, जो दो प्रकार के होते हैं, एक आइदर गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कि ये तार को जोड़ते कैसे हैं सर? दैट इज नोन एज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब the way by which the components of a computer network is placed in a network। किस प्रकार जोड़ा हुआ है, सारे कंपोनेंट्स को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसको कहा जाता है टोपोलॉजी। पिछले क्लास में बताए थे लैन और वैन में डिफरेंस। एक लैन टोपोलॉजी फॉलो करता है, वैन टोपोलॉजी फॉलो नहीं करता। अब टोपोलॉजी क्या है सर? वही एक तरीका, हम जैसे मन तैसे जोड़ दिए, कोई उसका कोई तरीका नहीं है, तो वो वैन है, उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। कहीं भी रख सकते हैं उसको, आगे भी रखें तो चलेगा, पीछे भी रखें तो चलेगा, 200 मीटर दूर रखें चलेगा, 1 मीटर दूर रखें तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम टोपोलॉजी फॉलो करेंगे, उसका एक रूल होगा, आपको ऐसे प्लेस करना है, एक स्ट्रक्चर में प्लेस करना है। कैसा कैसा स्ट्रक्चर? लेट मी टेल यू। पहला स्ट्रक्चर ऐसा, देयर इज अ थिक मदर केबल पासिंग थ्रू द होल ऑफिस और द होल इंस्टीट्यूशन। एक मदर केबल, मदर केबल मतलब मेन केबल जहां पे सारा सिग्नल उसके थ्रू पास हो रहा है। अब क्या करेंगे, उस मदर केबल से जिसको जब जरूरत पड़े वहां से सिग्नल लिया, यहां काम करना शुरू कर ऐसे गो ऑन। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है सर, ये तो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन मेन केबल जाएगा पूरे ऑफिस में, जिसको जब जरूरत पड़े वहां से वो प्लग घुसाया, अपना नेटवर्क ले लिया। इसका एडवांटेज क्या है? हम थाउजेंड्स ऑफ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मान लो ऑफिस, हम नया बिजनेस खोल रहे हैं, आज मेरे ऑफिस में 2 तल्ला ऑफिस है, 5-5-10 कंप्यूटर। हम, मेरा प्रॉफिट बढ़ा, मेरा बिजनेस बढ़ा, 2 साल के अंदर मेरा मतलब 10 मंजिला इमारत हो गया और हर फ्लोर में 20-20 कंप्यूटर। हमको 200 कंप्यूटर चाहिए, 10 से 200 हो गया मेरा। अगर ऐसा होता कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर फ्लोर में एक तार है भाई, उसको लगाओ और यूज कर लो। यही तो प्रॉब्लम है इसका, अगर ये मेन तार फूट गया तो सब खत्म। दूसरा बात है, हम जितना इसके ऊपर नोड्स बढ़ाएंगे, इसका लोड बढ़ेगा, इसका एफिशिएंसी कम जाएगा। प्रॉब्लम तो इसका कुछ एडवांटेज ये है, भाई पैसा कम लगता है। एक मोटा तार घुमा दिया, जिसको जहां से यूज करना ले लिया, किसी को मेन मतलब कनेक्शन का पैसा नहीं लग रहा है, हर जगह वो अवेलेबल है। दूसरा, बहुत इजी टू यूज है, बहुत इजी टू एक्सपैंड है, इसके लिए बेसिक बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। खराबी क्या है? अगर ये मेन तार खराब हो जाता है, पूरा डाउन हो गया, मान लो यहां पे कुछ खराबी आया, तो इसके बाद से हमको सबका चेक करना पड़ेगा, कहां खराब हुआ है, सब चेक करते चलो। ठीक है। तीसरा, as the load increases, the number of nodes increases, the efficiency of the network decreases, स्लो हो जाएगा, ठीक से काम नहीं करेगा।
इस तरह के टोपोलॉजी को कहा जाता है बस टोपोलॉजी। क्यों सर बस? देखो बीच में एक बस जैसा है और हर एक मतलब पैसेंजर उसमें बैठ रहा है, एक एक करके सीट्स जैसे हैं वैसे बैठ। एक मेन मदर केबल जाता है, जिसको जो यूज चाहिए, जिसको जो जगह पे कनेक्शन चाहिए वो मदर केबल से कनेक्शन ले लेगा। दैट इज कॉल्ड द बस टोपोलॉजी। दूसरा क्या है, एक मेन सर्वर रहता है बीच में, सर्वर। फिर क्या करेंगे, हर आदमी कोई तार के नहीं, डायरेक्टली सर्वर से जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। सर्वर से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब सर्वर से डिपेंडेंट है। कोई भी एक होस्ट दूसरे होस्ट से कोई मतलब नहीं, ये खराब हो गया होने दो, बाकी सब काम करेगा। ये दो खराब हो गया, कोई बात नहीं, बाकी सब काम करेगा। सबको सर्वर से मतलब है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, लेकिन सोचो तो, अगर मेरा एक होस्ट यहां है, एक होस्ट यहां है, एक होस्ट यहां है, एक होस्ट यहां है, कितना लंबा लंबा तार लगेगा? सबको तो सर्वर से ही जोड़ना है, पैसा बहुत लगेगा। ये एक उसका डिसएडवांटेज है कि वायर कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि सबको सर्वर से लाना है। अब बोलेंगे सर ऐसा जगह रखेंगे, सर्वर को बीच में रखेंगे, वैसे अगर प्लानिंग है ठीक है, लेकिन अगर बाद में अगर तुमको ऐसा नहीं हुआ तो वो बार बार सर्वर चेंज करना तो मुश्किल है। सर्वर को एक जगह में फिक्स रखा जाता है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, सर्वर ही सब कुछ है। जिस दिन सर्वर धोखा दिया सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई बैकअप का कोई सिस्टम नहीं है। सर्वर ही सब कुछ है। कल जो बताए थे, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट के पास एबिलिटी होता है कि भाई तुम सिर्फ डेटा लो, डेटा दो, स्टोरिंग बोलो, कैलकुलेशन बोलो, प्रोसेसिंग बोलो, जो बोलो सब सर्वर करता है। यहाँ पे तो वही काम हो रहा है। इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज, सर्वर इज द होल थिंग इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। सर्वर डाउन, पूरा नेटवर्क खत्म, नेटवर्क कहाँ रहना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई इसका बहुत लंबा लंबा तार लगता है, जहां सर्वर से एकदम मेन हमको होस्ट तक ले जाना है तार, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है सर, कि हर होस्ट इंडिपेंडेंट काम करता है, किसी को दूसरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर पे काम करता है, बहुत इजी टू एक्सपैंड। सर्वर से पहले 5 आदमी काम कर रहे थे, सर्वर से 20 आदमी काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ माई दिस टोपोलॉजी वर्क। और इसका नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार क्यों? ये स्टार जैसा लग रहा है, सन जैसा, या स्टार जैसा, बीच में हॉट बॉल ऑफ गैस है और सब अगल बगल उसका फ्लेम्स निकलता है, स्टार टोपोलॉजी। फिर इस स्टार को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, उसको बन दिया ट्री। कैसे ट्री? मतलब ये मेरा सर्वर है, सर्वर को अगर पूरा पूरी इसके ऊपर अगर रिलाय करने लगे तो हमको बहुत टेंशन हो जाएगा और तार भी बहुत ज्यादा लगेगा। हमने क्या किया, हमने इस सर्वर को दो छोटे छोटे सर्वर्स में डिवाइड कर दिया कि आधा डेटा तुम रखो, आधा डेटा तुम रखो। जस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज। एक यूनिवर्सिटी में 2 तरह की पढ़ाई होती है, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। तो अगर सारा डेटा अगर एक ही सर्वर से खींचे तो जब रिजल्ट की बारी आएगी या फॉर्म फिलअप की बारी आएगी, कितना लोड पड़ेगा सोचो तो। वो सर्वर क्रैश कर सकता है, सर्वर खराब हो गया तो बस उसको कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कोई गारंटी नहीं है। सर्वर स्लो हो जाएगा, सब तो सर्वर के साथ खींचना नहीं कर रहा है। हमने क्या किया भाई, हम मेन सर्वर को 2 हिस्से में बांट दिया, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट सर्वर खराब होता, अंडर ग्रेजुएट काम करेगा, इससे इसको कोई मतलब लेना देना नहीं है। अंडर ग्रेजुएट खराब हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट खराब हो गया। कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर है लेकिन पूरा डेटा नहीं है, मतलब इसको ज्यादा लोड नहीं है, ये जल्दी जल्दी खराब नहीं होगा। फिर हमने इसको और चाहे तो हम इसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम होगा, एमबीए स्ट्रीम, बीटेक स्ट्रीम, एमबीए एमसीए स्ट्रीम, यहां भी उसका अलग अलग स्ट्रीम कर देंगे और हम छोटे छोटे सर्वर्स में टूट गए। मतलब ये इसके स्टार है, ये इसका स्टार है, स्टार को हम और तोड़ते गए ऐसे लाइक दिस। तो इससे फायदा क्या है, तार भी कम लग रहा है, डायरेक्टली हमको यहां से यहां तक तार का हमको खर्चा बच गया। यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, हमको यहां से यहां जोड़ने का पैसा नहीं लगा, ठीक है। तार का खर्चा बचा, सर्वर के ऊपर डिपेंडेंसी बचा, सर्वर का एफिशिएंसी बढ़ गया। तो ये इसका एडवांटेज है। और अभी मैक्सिमम नेटवर्क सब इसको फॉलो करते हैं। सो इस तरह के नेटवर्क को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्री टोपोलॉजी, ठीक है।
अब सब तो सर अब सर्वर बेस्ड है, यहां भी मेन सर्वर है, यहां भी सर्वर है, यहां भी सर्वर है। ऐसा कोई नेटवर्क नहीं जो बिना सर्वर का काम करे। आप तो बोलोगे 2 तरह का नेटवर्क होता है, एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड और एक P2P बेस्ड, पॉइंट टू पॉइंट। कोई सर्वर नहीं है, सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ऐसा 2 है। कौन कौन सा? एक रिंग टोपोलॉजी और एक मेश टोपोलॉजी। क्या है रिंग सर? नाम से लग रहा है यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, सब रिंग से जुड़ा हुआ, लाइक दिस। दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ एंड दे कैन कम्युनिकेट आइदर वे। दो तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल। इसका फायदा क्या है? अगर मान लो मेरा यहां से यहां का लिंक कोई कारण से खराब हो गया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम ऐसे घूम के भेजेंगे, लेकिन डेटा जाएगा जरूर, घूम के जाएगा जरूर। और यहां पे कोई सर्वर नहीं है, हर किसी को दूसरे से कम्युनिकेट करना है। ये सब तो आपस में कम्युनिकेट हो रही है, ये भी यहां से कम्युनिकेट होगा, घूम के जाएगा। टाइम ज्यादा लगे या जो भी लगे, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं होगा। रिंग टोपोलॉजी, इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। और ये काम करता है P2P नेटवर्क के लिए, यहां कोई सर्वर नहीं है। तो इसका एक एडवांटेज सर्वर जैसा नहीं है, सर्वर बोल के कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना। यहाँ पे सर्वर खत्म फुट गया, यहाँ सर्वर खत्म फुट गया, सर्वर खत्म फुट गया, यहाँ कोई सर्वर है नहीं, एक खत्म नो प्रॉब्लम, बाकी से कमेंट करेंगे, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है? हम नेटवर्क बनाएंगे, हमने एक डायग्राम बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक लेआउट बनाया 5 कंप्यूटर। अचानक मैनेजर आके बोलता है अरे भाई 3 कंप्यूटर और जोड़ना है। सोचो तो हम 3 कंप्यूटर जोड़ेंगे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ए जानता है कि मेरे बगल में बी है, इधर सी है, मेरे 3 कदम पे ई है। अब बोलना पड़ेगा नहीं भाई 3 कदम पे एफ है, क्योंकि हम और एक्स्ट्रा जोड़ दिए ना, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनके लिए नाइटमेयर है ये रिंग टोपोलॉजी। लेकिन ऐसे देखा जाए तो पैसा बहुत कम लगता है, लंबा तार का जरूरत ही नहीं है, सब तो एक दूसरे जुड़ा हुआ है, सर्वर का खर्चा नहीं है ना। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेटर है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कभी काम नहीं करेगा। और द लास्ट नेटवर्क इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। मेश का मतलब क्या होता है? एकदम सब नेटवर्क, मतलब सब एक साथ नेट जैसा बना हुआ, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, ये भी इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ। देखो स्टार्ट है मेश टोपोलॉजी। All computers or all hosts are connected with each other. डायरेक्ट कम्युनिकेशन, घूम के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर इतना तार, कितना तार लगा, आप समझ रहे हैं कितना तार लगा यहाँ पे, कितना खर्चा पड़ेगा इसमें। चलो पहला डिसएडवांटेज ऐसे ही मिल गया। दूसरा डिसएडवांटेज, अगर बाई चांस ये खराब होता है, ठीक करने में जो होगा उसको तो बेचारा उसका सुसाइड करना पड़ेगा उसको, हर जगह एक खोल खोल के देखने में, कहां से प्रॉब्लम हुआ पता नहीं, हर दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये है मेश टोपोलॉजी। ये हम लोग यूज नहीं करते, पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये यूज नहीं करते, बहुत हेडेक है इसमें। तो बेस्ट क्या है? ये ट्री, और यही हर जगह यूज होता है। हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन बाद, मतलब कुछ देर में हम लोग पढ़ेंगे 80-20 रूल, हो सके आज के सेशन में या अगला सेशन में, उसमें देखो ये सबसे बेसिक यूज होता है। करेक्ट है? बेस्ट एग्जाम्पल लो ना, हम लोग का जो घर का बैंकिंग यूज करते हम लोग, ठीक है। जस्ट सोचो, तुम जो एटीएम कार्ड लेके घूमते हो, उस एटीएम कार्ड का डेटा कहां पे स्टोर है? सोचो, तुम बोलोगे सर एटीएम कार्ड का डेटा सीजोन ब्रांच में, आपको सीजोन में है, सीजोन ब्रांच में स्टोर है। तो हम, मेरा पैसा खाली सीजोन ब्रांच से निकलता है क्या? मेरा पैसा एजोन से नहीं निकलता, मेरा पैसा बेनाचिली से नहीं निकलता, मेरा पैसा सिटीजन से नहीं निकलता, सब जगह से निकलता है। तो कहां पे स्टोर है सर मेरा डेटा? कि मेरे अकाउंट में 25,000 रुपया है। ये डेटा कहां पे स्टोर है? सर दुर्गापुर का एक सर्वर होगा वहां पे स्टोर, सिटी से दुर्गापुर मेन ब्रांच में, ठीक है। चलो हम ये एक एटीएम लेके चले गए आंध्र प्रदेश घूमने, वहां पे काम करेगा मेरा एटीएम? हाँ कर रहा है। तो वो भी क्या मेरा डेटा दुर्गापुर से मांगने आएगा? नहीं। तो कहां पे है ये डेटा? सर ये स्टेट बैंक का एक मेन सर्वर है महाराष्ट्र, बेलापुर बोल के, वहां पे सिर्फ बैंक का अकाउंट नाम, अकाउंट नंबर, नाम और बैलेंस, और कुछ नहीं स्टोर है, बस खाली इतना 3 चीज स्टोर है। क्या क्या बोले? नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस। वो मेन है, इंडिया में सिर्फ एक ही है और हर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ऐसे तुम लाइक, मेरा एटीएम है, हम यहाँ वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे हम है, और हम चले गए आंध्र प्रदेश, तो वो क्या करेगा?
वो यहां से जाएगा आंध्र प्रदेश का मेन सर्वर, आंध्र प्रदेश का मेन सर्वर जाएगा बेलापुर, बेलापुर में जाएगा भाई इस एटीएम में कितना पैसा है, हाँ है तो निकाल के दे दो। लेकिन हम एटीएम में जाएंगे मेरा फोन नंबर चेंज कर दो या मेरा घर का एड्रेस चेंज कर दो, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है नहीं। इसके किसके पास है, यहां पे इंफॉर्मेशन, डेटा को तोड़ के रखा गया, किसी को ऊपर लोड नहीं दिया गया। यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है, दुर्गापुर मेन सर्वर में मेरा कुछ इंफॉर्मेशन है, वेस्ट बंगाल मेन सर्वर पे कुछ इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल फिर बेलापुर से जुड़ा हुआ, इस तरह तोड़ तोड़ के बेलापुर, ईस्ट जोन, वेस्ट बंगाल, बर्धमान, दुर्गापुर, सी जोन तोड़ तोड़ के सर्वर रखा, किसी को ऊपर लोड नहीं पड़ रहा। ट्री टोपोलॉजी, बेस्ट टोपोलॉजी हम लोग यही यूज करते हैं। समझ में आया टोपोलॉजी का मतलब? अब हम लोग जानना चाह रहे हैं, अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि सर मेरे एक तार में इतना सारा नेटवर्क आता कैसे? दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन। व्हाट इज दिस मॉड्यूलेशन ऑल अबाउट? मॉड्यूलेशन बताने के पहले एक एग्जांपल से समझाया जाए। घर में टीवी तो होगा ही, टीवी में कनेक्शन आता है तार का, अब वो डिश टीवी हो या केबल टीवी हो दैट डजंट मैटर, लेकिन तार कितने आते हैं? सिर्फ एक ही तार आता है। अंदर कितना सारा तार होता है? सर एक मोटा सा कॉपर का वायर, एक ही वायर होता है, पता है, कोएक्सियल केबल, एक ही वायर होता है, एक मोटा थिक कॉपर वायर। खुश, उसमें कितना क्या ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स। यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। हमारा सवाल यह है, इलेक्ट्रिसिटी को तो एक ही तार में ट्रेवल करता है, तो उस एक तार में इतना सारा चैनल कहां से आया? जी टीवी है, स्टार टीवी है, कार्टून नेटवर्क है, स्पोर्ट्स चैनल है, न्यूज चैनल है, ये है वो है, बंगाली चैनल्स है, नेशनल ज्योग्राफिक है, एक ही तार में कैसे आए? यही तो है मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? पैकिंग ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स और पैकिंग ऑफ डिफरेंट पैकेट्स in a single channel, in a single wire is known as modulation. मॉड्यूलेशन करने का तीन तरीका है, एक है AM, एक है FM और एक है PM। AM FM तो बहुत सारे, FM वीडियो, FM रेडियो बहुत नाम सुने हैं। क्या है FM? FM का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हम लोग फ्रीक्वेंसी को अदल बदल करके भेजते हैं। AM क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हम लोग एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। PM फेज मॉड्यूलेशन, फेज मतलब आइदर ऊपर तक ट्रेवल करेगा या फिर नीचे ट्रेवल करेगा। हम डेफिनेशन लिखते हैं, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ये है फेज मॉड्यूलेशन। कैसे? चलो ये है मेरा कैरियर सिग्नल, ये मेरा वेव है, ये मेरा वेव कैरियर है, ये मेरा वेव कैरियर। हम सब में दो दो सिग्नल ट्रैवल कराएंगे। देखो कैसे ट्रैवल करेंगे, एक ही बार में दो सिग्नल ट्रैवल करेंगे। पहला, इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, पहला का एम्पलीट्यूड छोटा छोटा, ये एम्पलीट्यूड, ये मेरा वेव नंबर 1, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक है। दूसरा वेव मेरा ऐसा होगा, वेवलेंथ इज सेम, वेवलेंथ को हमने चेंज नहीं किया। किसको चेंज किया सर? हमने एम्पलीट्यूड को चेंज किया, हाइट को चेंज किया। एक ही तार में दो अलग अलग सिग्नल ट्रैवल कर, रेड वाला ब्लू वाला। हम इस तरह बहुत सारे एम्पलीट्यूड को बना सकते हैं। एक ही वेवलेंथ रहेगा, एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगा, खाली एम्पलीट्यूड अलग अलग है। दिस इज पॉसिबल। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं इसको। दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पहला फ्रीक्वेंसी ये है, ये है पहला फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक, और लंबा होगा। हाँ ये है मेरा एक पहला फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया, यही हाइट का, हाइट यही है, एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी बनाया ऐसा। दोनों का हाइट सेम है, लेकिन ब्लू वाला वेव का सिर्फ एक ही वेव ट्रेवल किया, लेकिन रेड वाला का दो वेव ट्रेवल किया।
अगर हम ऐसा वेव बनाते हैं, देखो हाइट सेम है इन तीनों का, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी अलग है। एक ही कैरियर में कितना सारा सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मेरा एक वेव जा रहा है ऐसे, दूसरा वेव क्या करेगा, दूसरा वेव मान लो ऐसे जा रहा है, जैसे यहां पे गया वो यहां पे फिर ऊपर नहीं जाएगा, इसको ऊपर जाना चाहिए था, यहीं से फिर ऐसे नीचे ट्रेवल करेगा, फिर नीचे नहीं जाएगा, यहां से ऊपर ट्रेवल करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जैसे उसका एक वेव लेंथ का आधा होता है, जैसे मतलब ऊपर नीचे जाना होता है, वहीं से वो उसको चेंज कर देता है। सो ऐसे मेरा बहुत सारा सिग्नल ट्रेवल कर सकता है एक ही वायर में। दिस प्रोसेस नोन एज मॉड्यूलेशन। अब वो टीवी में उसका अलग मशीन लगा, उसका डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, वो सिग्नल को अलग अलग करता है, तोड़ता है सिग्नल को। जैसे हम लोग मॉडेम कल पिछले दिन बोल रहे थे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसी प्रकार ऐसे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। समझ में आया? सो दिस इज हाउ माय मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, अब फिर प्रॉब्लम सर, जब भी पढ़ते हैं आप एक प्रॉब्लम ले आ जाते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एक वायर में या एक चैनल में अगर इतना सारा सिग्नल ट्रैवल करेगा, मतलब एक ही रास्ता पे अगर तुम अगर अकेले गाड़ी चलाओ वो अलग मजा है गाड़ी चलाओ, जैसे 2 गाड़ी होगा थोड़ा धक्का लगने का चांस होगा, 4 गाड़ी सर बहुत जगह, 10 गाड़ी सर श्योर एक्सीडेंट होगा। तो यहां सोचो, एक वायर में एक सिग्नल गया, कोई नहीं है, खुला एकदम रास्ता, फांका एकदम, इधर उधर लेफ्ट राइट करेगा। The moment more signals are added to the channel, क्या होगा sir? The signals will fight among each other. This is known as collision. और collision का रिजल्ट क्या है? collision का रिजल्ट सर bottleneck। collision मतलब एक ही तार में जब बहुत सारा सिग्नल ट्रेवल करता है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 सिग्नल आपस में टकरा जाए, या 2 सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एक हो जाए, 2 सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक हो जाए, बस वो दोनों तो कोलाइड करेंगे, वो सिग्नल हमको नहीं मिलेगा। एक ना एक समय जाके दोनों एक साथ मिल जाएगा, खत्म, फिनिश्ड। ना हमको ये सिग्नल मिलेगा ना वो सिग्नल मिलेगा। तब क्या करेंगे? तब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा हार्डवेयर, कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई एक धक्का हुआ है और उसे बॉटलनेक सिचुएशन है। बॉटलनेक मतलब सब जाके एक जगह फंस गया, कोई निकल नहीं पा रहा। तब क्या करेंगे? तब हम एक सिग्नल सेंड करेंगे कि भाई अ जैम हैज ऑकर्ड, कोई अभी 2 सेकंड तक अभी ट्रांसमिट मत करो। जैसे 2 सेकंड मतलब एक टाइम उसका फिक्स रहता है कि इतना पैकेट के लिए 2 सेकंड, 4 पैकेट के लिए 3 सेकंड, ऐसे वो टाइम एक फिक्स रहता है, उसका एल्गोरिथम रहता है कि कितना पैकेट होने पे हम कितना सेकंड का गैप देंगे। उस सेकंड तक किसी को ट्रांसमिट करने नहीं देना भाई, सबको बंद, भाई कोई हल्ला नहीं करेगा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, देखना कभी ट्रैफिक में जाम हो जाए तो उधर एक मदाना रोक दो, उसको हाथ रुक दे, जब तक ये जगह खाली होता है किसी को उधर आने नहीं देगा। ये जगह खाली होगा फिर एक करके सबको। सेम काम यहां होता है कोलिजन। और इसको डिटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं CSMACD। क्या है ये CSMACD? फुल फॉर्म कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हर लेयर पे रहता है। स्पेशली वो OSI मॉडल का ये पार्ट बोल रहे हैं, अब क्या है वो भी बताएं, डोंट वरी। ये हर नेटवर्क लेयर पे रहता है और वो डिटेक्ट करता है कि भाई मेरा नेटवर्क ठीक से स्मूथली फ्लो हो रहा है कि नहीं। जिस समय लगेगा भाई मेरा यहाँ ज्यादा, मतलब इस टाइम में यहाँ पे इतना नेटवर्क का पैकेट नहीं होना चाहिए था, मेरा जो नेटवर्क का साइज है, ठीक है, जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि ठीक से सब फ्लो नहीं हो रहा? हम एक जगह में बैठे हुए, हमको मालूम है मेरे रास्ता से हर वक्त हर सेकंड 20 बाइक निकलेगा, ये मेरा एक एवरेज है। देख रहे हैं बाइक सब रुक गया, नहीं पार, तब हम क्या सोचेंगे? जरूर आगे प्रॉब्लम है।
तब हम आगे वाले से पूछेंगे क्या भाई तुम्हारे वहां पे क्या हुआ, बोलेगा हाँ भाई मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम। जैसे वाला हम बोलेंगे भाई रुक जाओ। इसलिए हर लेयर पे ये सिस्टम रहना जरूरी है, जो हर लेयर से डिटेक्ट करते बताएगा कि मेरे पास यहाँ पे कोलिजन हुआ है। फुल फॉर्म कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्ट करेगा, सिर्फ डिटेक्ट कर सकता, कोलिजन हटा सक नहीं सकता। हटाने का एक ही प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैसा हम एक एक करके निकालेंगे, जैसे सब निकलेगा फिर दूसरे को आना शुरू। ये हमारा सिस्टम है कोलिजन रोकने का, और ये मॉड्यूलेशन में होगा। अगर मॉड्यूलेशन यूज नहीं करें तो कोलिजन कभी नहीं होगा, एक तार एक आदमी के एक सिग्नल के लिए। लेकिन सोचो ये कितना कॉस्टली पड़ेगा बिना मॉड्यूलेशन का। तुम्हारे घर में 10 अगर मान लो 50 चैनल आता है टीवी में, 50 चैनल करेगा तो 50 अलग अलग तार इस्तेमाल करना पड़ता। एक तो जगह लेता, बहुत कॉस्टली कितना होता, कितना हेडेक होता सब तार को मेंटेन करना। तो मॉड्यूलेशन इज वेरी गुड, द ओनली प्रॉब्लम इज भाई कोलिजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट। सो नेक्स्ट द टाइप में हम लोग बढ़ते हैं, उसको कहा जाता है नेटवर्क कंपोनेंट्स। ये नेटवर्क कंपोनेंट्स के पहले एक और चीज हम मिस कर गए, लेट मी टेल यू। ये वर्ड, हैव यू हर्ड दिस वर्ड एथरनेट? क्या है ये एथरनेट? एथरनेट इज सिंपली ए लैन। बस पिछले क्लास में पढ़ा था सर लैन क्या? यस, एथरनेट इज ए स्पेशली डिजाइंड लैन that has its own protocol or follows a particular set of protocols. The most popular network that is found in the earth today is Ethernet. इसीलिए हम लोग जो नेटवर्क केबल जो आजकल यूज करते हैं वो लोग कॉमन चाल भाषा में क्या बोलते हैं? इथरनेट केबल, इथरनेट पोर्ट। हम लोग नेटवर्क पोर्ट बोलना ही भूल गए, नेटवर्क केबल बोलना ही भूल गए। क्यों? नेटवर्क का मतलब इथरनेट है ना। हम लोग जैसे बोलते हैं फोटोकॉपी, कोई बोलता है क्या सर इसका 2 फोटोकॉपी कर दीजिए, इसका 2 जेरोक्स कर दीजिए। एक्चुअली जेरोक्स कोई टर्म नहीं है, जेरोक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपी का मशीन बनाती थी। बस जेरोक्स कर दीजिए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं, कोलगेट शेष हो गया, कोलगेट आनता हो। भले हम लोग घर में पेप्सोडेंट या मिसवाक यूज करते हैं, लेकिन कोलगेट शेष हो गया, वो एक नाम बन गया टूथपेस्ट का। उसी प्रकार इथरनेट कोई नेटवर्क टाइप नहीं है, ये एक पर्टिकुलर लेआउट है, लैन लेआउट, जो कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को लेके फॉलो करता है। और ये इतना पॉपुलर है कि हर कोई अभी इसी को फॉलो करता है। ये एक तरह का नेटवर्क है, लैन नेटवर्क, जो प्रोटोकॉल से चलता है। दिस इज कॉल्ड माई एथरनेट। समझ में आया? इसलिए आजकल जितना भी हम लोग पोर्ट यूज या नेटवर्क तार यूज करते हैं, सब एक्चुअली नेटवर्किंग वायर की जगह हम लोग इथरनेट वायर भी बोलने लगे, इथरनेट पोर्ट भी बोलने लगे। बट एक्चुअली दे आर नेटवर्क पोर्ट्स, दे आर नेटवर्क वायर्स और नेटवर्क चैनल्स। क्यों ये वर्ड उठा? क्योंकि सबसे पहले नेटवर्क कंपोनेंट इसी के ऊपर है। द फर्स्ट नेटवर्क कंपोनेंट, तुमको क्या लगेगा नेटवर्क लगाने के लिए? इज अ एनआईसी कार्ड और ए एनआईसी पोर्ट। व्हाट इज दिस एनआईसी कार्ड और एनआईसी पोर्ट? ये एनआईसी कार्ड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। आप लोग तो नेटवर्क यूज करते हैं, बहुत कोई अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में नेटवर्क यूज करते हैं। कभी देखे हैं नेटवर्क का एक तार, जो केबल का तार आप अपने कंप्यूटर में लगाते होंगे, वो पोर्ट जहां पे आप घुसाते हैं वो कोई ऑर्डिनरी पोर्ट नहीं, वो ऐसा कोई डिजाइंड पोर्ट होगा, ऐसा स्क्वायर पोर्ट होगा जिसके नीचे से क्लिप होगा, और इस क्लिप में यहाँ बहुत सारे ऐसे तार होते हैं। ऐसा पोर्ट होता है, यहाँ पे आप वो लगाते हैं, बहुत सारा तार होता है एक तरफ और नीचे क्लिप होता है जिसको दाब के निकालना पड़ता है। टेलीफोन में जैसा होता था, टेलीफोन देखा तो जो लैंडलाइन में जिस तरह का पोर्ट था, कट से आवाज करता था, जो पोर्ट जिस तरह, वो है एनआईसी नेटवर्क का। क्या होता है सर? ये वो पोर्ट है जिसके थ्रू हम वो तार को लगा सकते हैं, नेटवर्क के तार को लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एनआईसी। ये पहले के जमाने में द फर्स्ट कंप्यूटर विच आई बॉट इन 2003 डिडंट हैड एन एनआईसी। उसके जमाने में, उस जमाने में नेटवर्क इतना पॉपुलर नहीं था। स्टैंड अलोन कंप्यूटर सब अपना अपना कंप्यूटर, नेटवर्क का वहां कंसेप्ट ही नहीं था। पेन ड्राइव तो आए नहीं थे, हम लोग डेटा कैरी करते थे फ्लॉपीज एंड सीडीज में, ठीक है।
तो एनआईसी कार्ड जब हम नेटवर्क लिए, सोचे हम नेटवर्क चाहिए 2006 में या 7 में हम नेटवर्क का कंसेप्ट लाना चाहे, तो आई हैड टू सेपरेटली बाय अ नेटवर्क कार्ड। हमको नेटवर्क कार्ड लगा के अपने कंप्यूटर में अलग से लगाना पड़ा, इंस्टॉल करना पड़ा। आजकल को लफड़ा ही नहीं है क्योंकि मदरबोर्ड में इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड आता है, बट इट इज अ पोर्ट, अगर खराब हो जाए अलग से लगा सकते हैं। एनआईसी नेटवर्क कार्ड, और ये इसको एथरनेट पोर्ट भी कहने लगे आजकल। व्हाई? बिकॉज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ नेटवर्क दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, और ये जो जैक, जो पोर्ट यहाँ पे लगता है, जो क्लिप जो बोले, कट से आवाज हो जाएगा, फिर दाब के निकालना पड़ता है। दैट क्लिप इज नोन एज RJ45। क्या है RJ45? रजिस्टर्ड जैक 45, ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो कि भाई इंटेल एक बनाया, AMD एक बनाया, HP एक बनाया, डेल एक बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका एक जैसा पोर्ट होना चाहिए, सबका एक जैसा जैक होना चाहिए। तो इसीलिए उसका नाम देंगे रजिस्टर्ड जैक 45, RJ45। सबका एक नंबर ऑफ वायर, सबका वो नंबर ऑफ वायर 8 होते हैं, 8 वायर होंगे, इतना साइज का होगा, यहाँ पे क्लिप होगा, यहाँ पे ये होगा, सबका फिक्स्ड है, स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए उस क्लिप का नाम देगा RJ45 और उस पोर्ट का नाम देगा NIC। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है आई नीड ए मॉडेम। इसके बारे में हम लोग कल भी, मतलब इन द प्रीवियस क्लास हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। व्हाट इज अ मॉडेम? मॉडेम इज नथिंग बट इज अ हार्डवेयर पार्ट, जो क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये हर कंप्यूटर जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ है सबके पास ही होना चाहिए। हार्डवेयर मॉडेम भी होता है, सॉफ्टवेयर मॉडेम भी होता है। मॉडेम का यही काम है, इट कन्वर्ट द एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। हम लोग जो सिग्नल हम लोग को मिलता है जो वायर में, वो कैसा सिग्नल होता है? लाइक दिस, एनालॉग सिग्नल, ऐसा साउंड वेव्स जैसा। और डिजिटल कैसा होता है? लाइक दिस, 1 0 1 1 1 1 0 0 1, ऐसे होता है। ये है हमारा डिजिटल सिग्नल, ये है हमारा एनालॉग सिग्नल। इसको इसमें कन्वर्ट कौन करेगा? ये मॉडेम। मॉडेम का कल पिछले बार यूज बताया। पहले जमाने में मॉडेम अलग से खरीदना पड़ता था, इंटरनल मॉडेम। अभी तो एक्सटर्नल मॉडेम आ गया, अंदर लगाने का जरूरत नहीं है, बाहर से कनेक्शन हो जाता है मॉडेम का। ये दूसरा काम क्या है? दूसरा है मेरा रिपीटर। रिपीटर का नाम बताओ। जैसे मेरे, तुम लोग जितने सारे स्टूडेंट्स हो या बैठे यहाँ पे, सपोज हम मेरे घर से इंडिविजुअली सबके यहाँ तार भेजना चाहते हैं, तो सबसे नियरेस्ट अभी कौन है मेरे घर के बगल में? सबसे नियरेस्ट कौन है सर? पार्थे, एकदम जस्ट काशीराम। यहां से वहां का तार खर्चा हार्डली 200 मीटर। फिर आएंगे रोहन, फिर आएंगे तापोश, फिर आएंगे बिपाशा, फिर शिवानी, फिर आएंगे सुमेधा, शी इज इन विधाननगर। इतने दूर है वो, ये ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 200 मीटर के अंदर। मतलब मेरा तार जो यहां से वहां जाएगा, इट कैन कैरी गो इजीली, प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम OFC लगाएं, हम तो ऑलरेडी कोएक्सियल केबल लगाएंगे। जरा सोचो, मेरा सिग्नल जब यहां से विधाननगर आड़ा जाएगा 14 किलोमीटर दूर, ये सिग्नल उतना दूर ट्रेवल करते करते, ये ड्यू टू हीट जनरेटेड ऑफ द वायर, मेरा सिग्नल तो डिप्रिशिएट कर सकता है। तो हम यहाँ पे सिग्नल उसको भेजे 100 kb का, सुमेधा उसको रिसीव करेगी 70 kb, 30 kb रास्ता में हीट के कारण वो खत्म हो गया। हम ऐसा नहीं चाहते। तुम जो सिग्नल तुमको मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? मे बी द सर्वर इज केप्ट इन कोलकाता, कोलकाता से सिग्नल दुर्गापुर आ रहा है, खराब होता है ना बीच में, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता। हर सिग्नल का एक प्रॉपर्टी, भाई हम हार्डली 100 मीटर या 200 मीटर तक बिना एबरेशन के, बिना कोई सिग्नल लॉस के ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सिग्नल लॉस होना शुरू। तो ऐसा होना चाहिए नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे ही हमको लगा कि 100 मीटर या 200 मीटर चला गया, हम यहाँ पे एक बॉक्स लगा देंगे। ये बॉक्स का काम क्या है? ये सिग्नल को रीजनरेट कर देता है। अगर बाई चांस सिग्नल ब्रेक हो तो उसको रीजनरेट कर देता, बस हो गया। जैसे यहां से 2 किलोमीटर गया भगत सिंह, वहां पे रिपीटर लगा हुआ, रीजनरेट कर। भगत सिंह से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पे एक रिपीटर लगा हुआ, वहां से वो रीजनरेट हुआ। वहां से निकला कहां गया? फुलजोर, वहां पे एक लगा हुआ रिपीटर। वहां से निकला कहां गया? आडामोर, वहां पे एक लगा हुआ। वहां से निकलेगा वहां से, फिर यहाँ ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिस्टेंस दिया हुआ। आप लोग भी अपने मोहल्ले में या पाड़ा में देखते होंगे, जो केबल का तार आता है, देखो कि एक केबल का तार आया, फिर एक दूसरा, लेकिन बीच में एक बॉक्स लगा हुआ। वो बॉक्स का काम क्या है?
एक आया एक निकला, तो बॉक्स बीच में लगाया क्यों? अरे बॉक्स वो रिपीटर है जो सिग्नल को टूटने नहीं देता। बीच में अगर बाई चांस अगर सिग्नल कम होता है तो सिग्नल को रीजनरेट करता है, दैट इज द वर्क ऑफ रिपीटर। फिर कौन सा यूज करेंगे? फिर हम लोग यूज करेंगे हब। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हब। हब का मतलब घर में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, मतलब वो कनेक्टर मतलब कनेक्टर, देखिए ना गोल जैसे कुछ होगा जहां बहुत सारा प्लग्स रहते हैं। एक सिग्नल, एक इनपुट रहता है, एक तार रहता है, और फिर बहुत सारे हम लोग वो घर में वो दिवाली वाली के समय यूज करते हैं बहुत सारे बल्ब जलाने के लिए। एक तार रहता है इनपुट, एक गोल जैसा, और यहाँ बहुत सारा प्लग, यहाँ एक प्लग है, यहाँ एक प्लग है, यहाँ एक प्लग है, यहाँ एक प्लग है, बहुत सारा प्लग है। ऐसे होता है ना। इससे क्या होता है कि एक सिग्नल से हम बहुत सारा सिग्नल जेनरेट कर सकते हैं, यही तो काम है हब का। ठीक है, मान लो कि हम एक साइबर कैफे चला, एक साइबर कैफे में 20 कंप्यूटर रखा हुआ, तो हम क्या 20 अलग अलग सिग्नल लेंगे? हम क्या 20 अलग अलग नेटवर्क कनेक्शन लेंगे? नहीं सर, हम सिर्फ एक ही कनेक्शन लेंगे, और वो कनेक्शन लाके हम घुसा देंगे कहां पे? हब के अंदर। अब वो हब क्या करेगा? वो हब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिग्नल को रीजनरेट करके सबके पास भेजे। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, हब तो यही करता है। हमारे घर में तो वो जो तार लगाते हैं कनेक्टर, वो तो यही काम करता है कि एक सिग्नल और 5 आउटपुट्स, 1 इनपुट 5 आउटपुट्स। बहुत सुंदर बात। जस्ट इमेजिन करो, वो इलेक्ट्रिसिटी था इसलिए चल रहा। यहाँ पे क्या है, हम जो सिग्नल लाए, जैसे मान लो मेरा यहाँ पे 7 कंप्यूटर रखा हुआ, 7 लैपटॉप लाइन से रखा हुआ, सब एक ही नेटवर्क यूज कर रहे हैं, एक ही तार, मेरा एक ही वाईफाई यूज कर रहा है, सब तो एक ही ब्रॉडबैंड है, बीएसएनएल। बिपाशा क्या कर रही है? सी इज प्लेइंग पबजी। ठीक है, पार्थिव क्या कर रहा है? वो मान लो फ्री फायर खेल रहा है। शिवानी इंस्टाग्राम, तापोश यूट्यूब, और वो क्या नाम है, रोहन, ही इज बिजी शॉपिंग, फ्लिपकार्ट खोल के बैठे हुए हैं। 5 जन बैठे हुए हैं, 5 अलग अलग काम कर रहे हैं। पांचों का तार लेकिन जा रहा है थ्रू माई ब्रॉडबैंड, दैट इज थ्रू मॉड्यूलेशन। हब में आया, सबके पास जनरेट हो गया, सबके पास सबका सिग्नल गया, क्योंकि हब तो वही करता है, खाली इनपुट को वो रीजनरेट कर देता है। मतलब बिपाशा के पास पबजी का भी सिग्नल जा रहा है, फ्री फायर का भी जा रहा है, इंस्टाग्राम का भी जा रहा है, फ्लिपकार्ट का भी जा रहा है, यूट्यूब का भी जा रहा है। उसका पाथ फालतू का ब्लॉक हुआ, स्पीड कमा, और वो उसका कंप्यूटर क्या किया? सिर्फ पबजी को ले लिया, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया। सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर बिपाशा हैकिंग जानती है तो शिवानी का इंस्टाग्राम वो हैक कर देगी, क्योंकि उसका सिग्नल उसके पास जा रहा है। बात समझ रहे हैं मेरा बात? हब अच्छा ये है क्योंकि ये बहुत कम खर्चे में सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। प्रॉब्लम ये है वो किसके पास कौन सा सिग्नल भेजना है ये भाई साहब को मालूम है, वो तो खाली मल्टीप्लाई करने के लिए बैठा हुआ। तब ये कौन जानेगा कि ये सिग्नल इसको देना है, ये सिग्नल इसको देना है, ये सिग्नल इसको देना है। दैट इज कॉल्ड स्विच। कल पर ना स्विचिंग टेक्निक, ये है स्विच। Therefore, switches are known as intelligent hubs. वो जो सिग्नल आएगा या जो सिग्नल जाएगा वो सबका रिकॉर्ड रखेगा कि भाई इस आईपी पे ये रिक्वेस्ट भेजा था, इस आईपी पे ये रिक्वेस्ट भेजा था, इस आईपी पे ये रिक्वेस्ट भेजा था। जब रिक्वेस्ट वापस आएगा, ठीक है, तो जैसे पबजी के सर्वर पे बिपाशा का आईपी से गया था रिक्वेस्ट, तो जब वो पबजी का सिग्नल आएगा वो उस आईपी पे जाएगा, बाकी सिग्नल लेकिन उस आईपी पे नहीं जाएगा, उस स्विच में ही रुक जाएगा। उससे क्या होता है? 2 फायदा होता है। एक तो नेटवर्क सेगमेंटेशन हो गया, कोई नेटवर्क किसी दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, सबका नेटवर्क फ्री रहेगा। दूसरा, हैकिंग या मतलब अनड्यू एडवांटेज लेना वो भी कम हो जाएगा। तो ये है मेरा स्विच का। लेकिन स्विच हब से बहुत ज्यादा महंगा है और स्विच को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हब को कॉन्फ़िगर करना नहीं है, वो एक बॉक्स है, लाके एक वो इनपुट घुसा, यहाँ 7 को आउटपुट या 10 को आउटपुट निकाल दिया। 10:1 होता है, 20:1 हब होता है, 12:1 हब होता है। उसमें कुछ कॉन्फ़िगर करना नहीं है, वो तो सिंपल तार को खाली इलेक्ट्रिसिटी को वो मैग्नीफाई कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। स्विच में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, हमको सेटिंग करना पड़ता है। स्विच कॉन्फ़िगर करने में आसान नहीं है। स्विच कॉन्फ़िगर करना आगे तो आप नेटवर्क इंजीनियर बन जाएंगे। ये है स्विच का प्रॉब्लम, जिसको स्पेशल टेक्नीशियंस लगते हैं उसको कॉन्फ़िगर करना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रिज।
ब्रिज का क्या काम होता है सर? ब्रिज तो वही नदी नाला के ऊपर लगाते हैं ना, इधर से उधर जाने के लिए, मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट को कनेक्ट करते हैं ब्रिज। तो हमारा भी ये ब्रिज यही काम करता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने में काम करता है, या एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के जोड़ने में काम करता है, बशर्ते देयर इज अ कंडीशन अप्लाई, दे मस्ट बी यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर, सेम आर्किटेक्चर एंड द सेम प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल बता रहे थे ना, इंट्रानेट होता है, सेल का हर जगह इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, डीएसपी जुड़ा हुआ भिलाई से, भिलाई जुड़ा हुआ बोकारो से, बोकारो जुड़ा हुआ राउरकेला से, राउरकेला जुड़ा हुआ सलेम से, सलेम जुड़ा हुआ किसी भद्रावती से, ये सब एक दूसरे आपस से जुड़ा हुआ है, सब सेल का नेटवर्क है, सब एक ही तरह का प्रोटोकॉल यूज करता है, एक ही तरह का सिस्टम यूज करता है, ब्रिज से काम होता है। मान लो दुर्गापुर बिग बाजार, इसका नेटवर्क आसनसोल बिग बाजार है ना, इसका नेटवर्क कोलकाता बिग बाजार, सब एक नेटवर्क में है, सबका एक ही जगह। मतलब जैसे बिग बाजार में कोई ऑफर आता है या कुछ चेंज आता है, क्या तुमको लगता है हर जगह एक एक करके चेंज करता होगा? नहीं, जो मेन सर्वर है, जहां पे मेन कंट्रोल पॉइंट है, दिल्ली या मुंबई, पता नहीं उसका मेन सर्वर कहां पे होगा, वहां पे चेंज करता है, पूरी जगह में एक साथ चेंजेस शुरू हो जाता है, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड, हर नेटवर्क एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, बट सारे नेटवर्क सिमिलर होना चाहिए, बस समझ में आया? लेकिन अब सोचो दूसरा चीज, ठीक है, क्या दूसरा बोल रहे हैं सर? अगर मान लो बिग बाजार को कनेक्ट करना है हमको ब्रिटानिया कंपनी के साथ, कि ब्रिटानिया कंपनी का कोई एक पैकेज आया बिग बाजार में, तो जितना सारा नेटवर्क का वहां उसका जो डेटा था वो ऑटोमेटिक बिग बाजार में चला है। कोई ये मत सोचो कि बिग बाजार में कोई आदमी बैठा हुआ, देखे ना तो बिग बाजार में कभी गए हो, कभी बिस्किट खरीदने कभी घुसे हो बिस्किट सेक्शन या कोई फूड सेक्शन, कितना सारा बिस्किट है, कितना सारा वैरायटी, मतलब सुबह से शाम अगर एक एक बिस्किट खाएंगे तो सारा वैरायटी नहीं टेस्ट कर पाएंगे, और कितना सारा पैकेट्स है उसे छोड़ दीजिए, अगर 1000 पैकेट जाए 1000 पैकेट निकाल के दे देगा। और वो कैसे डिटेक्ट करता है? थ्रू बारकोड, हर बिस्किट के पीछे एक बारकोड है, वो बारकोड जैसे स्कैन किया, उसका कंपनी, उसका दाम, उसका ऑफर, उसका एक्सपायरी सब मेरे बिल पे जनरेट हो गया, मतलब बारकोड से वो रीड कर लिया, बारकोड कंटेन्स दैट डेटा। ठीक है, तो कि तुमको क्या लगा, वो बारकोड तो किसी ना किसी ने तो कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है कि इस बारकोड नंबर का ये इन्फॉर्मेशन है, इस बारकोड का ये इन्फॉर्मेशन है, इस बारकोड का ये इन्फॉर्मेशन है। पूरे बिग बाजार का अगर इन्वेंट्री अगर हमको डालना हो ना, तो हमको 1 साल पूरा इन्वेंट्री बनाने में लग जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा बिग बाजार में इतना स्टॉक। तो सर कौन इनपुट करता वो? अरे कोई इनपुट नहीं करता। ब्रिटानिया कंपनी जैसे ही बिग बाजार के लिए एक ऑर्डर जनरेट किया, ब्रिटानिया से एक नेटवर्क सिग्नल बिग बाजार आ गया कि भाई मेरे यहाँ ये सब, आपके यहाँ ये सब माल घुस रहा है। पार्ले ने जैसे ही एक सिग्नल भेजा, उसके यहाँ ऑटोमेटिक घुस गया। ये कैसे हुआ सर? बिग बाजार तो अपना नेटवर्क था, पार्ले का अपना नेटवर्क है, कैसे वो दोनों कनेक्ट किया होगा? कोई गारंटी है दोनों सिमिलर नेटवर्क होगा? अगर सिमिलर होगा तो ब्रिज से काम कर जाएगा, अगर डिसिमिलर हुआ तो हमको लगेगा राउटर। रूटर नहीं, राउटर कहते हैं इसको, राउटर, ROUTER, राउटर। ये होता है कनेक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स, डिसिमिलर चैनल्स, जो अलग अलग नेटवर्क है, जिसके साथ एक के साथ एक कोई लिंक नहीं है, प्रोटोकॉल अलग अलग है, फिर भी वो जोड़ना चाहे तो इसके लिए राउटर यूज करें। राउटर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है क्योंकि सारा सिग्नल अलग अलग होता है, लेकिन इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट। एंड फाइनली जो हम बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। व्हाट इज दिस गेटवे सर? ये राउटर ब्रिज का एक थोड़ा बड़ा रूप, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा हार्डवेयर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा कंपोनेंट जो एक स्मॉलर नेटवर्क को लार्जर नेटवर्क पे जोड़ने का काम करे। आई टोल्ड यू, इंटरनेट क्या काम करता था? इंटरनेट काम करता था कि सारे छोटे छोटे नेटवर्क को एक जगह जोड़ के वो एक बड़ा नेटवर्क बनाया। ये एक अलग ग्रुप, इसका एक नेटवर्क, ये अलग ग्रुप, इसका नेटवर्क, ये एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क, सबको एक साथ जोड़ दिया ताकि वो इंटरनेट या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाए। वही मान लो अगर सेल को डायरेक्टली अपना नेटवर्क इंटरनेट पे डालना है ताकि कोई भी वो डिटेक्ट कर सके कि भाई डीएसपी में कितना माल प्रोडक्ट हुआ, या कोकोन में कितना टन कोयला यूज हुआ, या डीएसपी कितना लीटर पानी बर्बाद कर रही है, हर कोई इसको एक्सेस कर सके। कैसे करेगा? मतलब ये इस नेटवर्क को इंटरनेट पे डाल देगा। जैसे इंटरनेट पे डाल दिया
तो हमको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बैठ के देख सकेंगे डीएसपी का क्या हाल है। यही तो है इंटरनेट का काम ना, हर कोई हर जगह से एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए ना ब्रिज लगेगा ना राउटर, क्योंकि वो किस तरह का नेटवर्क फॉलो करेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक छोटा नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क को जोड़ रहे, दैट इज कॉल्ड द वे फंक्शन ऑफ अ गेटवे। गेटवे रिप्लाई, गेटवे हमेशा क्या करता है, कोई एक छोटा नेटवर्क को बड़े नेटवर्क से जोड़ता है। एक बेटर एग्जांपल बोलते हैं, जैसे कि अभी बैंकिंग होने लगा, वो सब गेटवे के ऊपर था। पहले बैंकिंग क्या होता था कि बैंक में कितना बैलेंस है, बैंक में कितना पैसा है, या कितना ट्रांसफर है, क्या कितना पैसा घुस रहा है, ये सिर्फ बैंक के वेबसाइट को ही मालूम था। ये सिर्फ स्टेट बैंक को ही मालूम था कि स्टेट बैंक के अंदर मतलब एक उसके जो कस्टमर है उसके कितने पैसे हैं, नहीं है। अभी तो यूपीआई का जमाना है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, वहां भी ऑप्शन दे दिया है नो योर बैलेंस। आप किसको मतलब नो योर लास्ट ट्रांजैक्शन, कितना पैसा घुसा है, कितना पैसा कटा है, कैसे? वो स्टेट बैंक ने अपना डेटा नेटवर्क पे डाल दिया, इंटरनेट पे डाल दिया। बल्कि बाप रे, से तो बहुत खतरनाक चीज है ना। मेरा डेटा अगर इंटरनेट पे है स्टेट बैंक का, तो वो तो मेरा डेटा हैक कर लेगा, मेरा फोन नंबर हैक कर लेगा, मेरा फोन नंबर चेंज कर देगा, मेरा पासवर्ड चेंज कर देगा, हम तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई, हम तो पहले बताया कि नेटवर्क में हर डेटा एक जगह पे स्टोर नहीं होता। जो नेट डेटा सिर्फ बैलेंस बताएगा, या जो डेटा सिर्फ मनी का इनपुट बताएगा, आउटपुट बताएगा, सिर्फ उतना डेटा को ही वो गेटवे पे डाला है। बाकी जितना इंफॉर्मेशन है उसका पर्सनल सर्वर में है, उसको वो नेट नहीं डाला। उसने डेटा को तोड़ दिया कि भाई ये डेटा उतना वल्नरेबल नहीं है। मेरा बैंक में ठीक है, मेरे बैंक में 5 लाख रुपया है, तुम जान के क्या उखाड़ लोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं। अंबानी के पास करोड़ मतलब थाउजेंड एंड करोड़ रुपीस है, हमको सबको मालूम है, हम क्या उखाड़ लिए? कुछ नहीं। तो ये जान के कोई फायदा नहीं कि उसके बैंक में कितना पैसा। हाँ, अगर उसके साथ मेरा फोन नंबर या आधार नंबर जाने तो शायद उसको कुछ कर सके, लेकिन वो नहीं डाला। वो सिर्फ इतना डाला कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, ताकि मेरा पैसा कट के हम किसी और को सेंड कर सकें। गेटवे यूपीआई में कर दिया, गेटवे सिस्टम। तो ये है मेरा नेटवर्क कंपोनेंट्स, हम नेटवर्क बनाने का तरीका। ठीक है। द नेक्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज इज द लेयर्स ऑफ नेटवर्क। लेयर, क्या लिखे हैं? लेयर मॉडल्स ऑफ नेटवर्क। व्हाट इज दिस लेयर मॉडल ऑल अबाउट? समझाने दो, फिर हम इसको पहले लिखने दो, फिर समझाते हैं क्या है। लेयर मॉडल 2 प्रकार के हैं, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल। क्या है OSI मॉडल? OSI मॉडल 7 लेयर में बना हुआ है, TCP/IP 4 लेयर पे बना हुआ है। क्या है पहला लेयर ऑफ OSI? पहला लेयर है एप्लीकेशन लेयर, फिर है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर है सेशन लेयर, फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर, फिर है डेटा लिंक लेयर, और फाइनली है फिजिकल लेयर। जिसमें से पहला 3 इज व्हाट इट इज, पहला 3 इज सेशन तक ये कंट्रोल करता है होस्ट, और आखिरी 4 ये कंट्रोल करता है नेटवर्क। TCP/IP इसका ही शॉर्ट एंड फॉर्म है, छोटा कंडेंस फॉर्म। क्या किया? ये तीनों लेयर को मिला के बना दिया उसने एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को सेपरेट रखा एज ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क और डेटा लिंक को एक साथ मिला के उसने बना दिया इंटरनेट लेयर। और फाइनली फिजिकल लेयर को फिजिकल लेयर रहने दी। फिजिकल एक्चुअली TCP/IP मॉडल इसका छोटा भाई है, लेकिन एक्चुअल काम यहीं से होगा। क्या होगा समझाने दो। क्या ये क्या समझा रहे हैं सर? लेयर क्या है?
एप्लीकेशन लेयर का काम। कभी व्हाट्सएप किए हो? बोले सर क्या मजाक करते हैं, आप पढ़ाई तो रहे व्हाट्सएप पे। ठीक, व्हाट्सएप में तुमने बोला सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज OSI, तुमने लिख के मार दिया एंटर, OSI मार दिया। तुमको मालूम है कि नेटवर्क मेरा कहां से जा रहा है, सर्वर के थ्रू जा रहा है या सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है या अंडरग्राउंड जा रहा है या पानी से तरके, तुमको जानने का मतलब है। तुमको मतलब क्या है? व्हाट्सएप से। तुमको और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप কাজ করছে না, দ্যাট ইজ শুড বি ইওর কনসার্ন। হোয়াটসঅ্যাপে টাইপ হচ্ছে না, হোয়াটসঅ্যাপে সাইনটা পাচ্ছি না, হোয়াটসঅ্যাপে ইমোजी পাচ্ছি না। तुम सिर्फ व्हाट्सएप से कंसर्न हो कि हम नेटवर्क में जो सिग्नल सेंड करेंगे वो उस ऐप पे किस प्रकार काम कर रहा है, वो है मेरा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन मतलब जहां पे तुम जिस ऐप के थ्रू तुम काम कर रहे हो उस ऐप में तुम्हारा नेटवर्क किस प्रकार का आ रहा है। जैसे तुम बिना नेटवर्क ऑन किए व्हाट्सएप खोलोगे, कैन नॉट रिफ्रेश स्पीड, या फिर तुम बिना नेटवर्क किए सेंड करोगे, तुम्हारा एक सिंबल दिखा देगा भाई नेटवर्क को हम नहीं सेंड, हम डेटा को नहीं सेंड किए। ब्लूटिक हो गया, हाँ रिसीव हो गया, रीड भी कर लिया। ये कौन सा बताएगा? ये कैसे बता रहा, तुम जानते हो? व्हाट्सएप बता रही है, एप्लीकेशन लेयर है। मतलब नेटवर्क कम्युनिकेशन जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है उस सॉफ्टवेयर के लेयर को कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। मतलब तुमने अपना व्हाट्सएप में सेंड कर दिया, सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड OSI, मार दिया एंटर। देखोगे व्हाट्सएप में लिखा रहता है दिस मैसेज इज एनक्रिप्टेड, दिस मैसेज इज एनक्रिप्टेड। ये एनक्रिप्टेड क्या है? तुमने जो मैसेज सेंड किया वो कुछ प्राइवेट मैसेज भी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी हो सकता है, तुम नहीं चाहते वो मैसेज किसी और के साथ शेयर हो। कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट वीडियो हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट सिग्नल इंफॉर्मेशन हो सकता है एक बिजनेस चलाने के लिए। यू डोंट वांट टू डिस्कस दैट मैटर विद एनीवन एल्स। इवन कि व्हाट्सएप का मालिक मार्क जुकरबर्ग जो उसका खरीदार है फेसबुक, हम उसको भी नहीं दिखाना चाहते और वो देखता भी नहीं। क्यों? ड्यू टू दिस प्रेजेंटेशन। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन? जैसे हमने लिख के एंटर मारा, उसने क्या किया, मेरे सिग्नल, मेरे जैसे हम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, उसने आई को कुछ और बना देगा, कैन नॉट को कुछ और सिग्नल में चेंज कर देगा। मतलब मेरा डेटा वो सिग्नल को वो चेंज कर दे रहा है। ठीक है, मतलब वो कुछ दूसरे से कोड में चेंज कर रहा है, कुछ कोडेड लैंग्वेज। जैसे हम लोग कोड लैंग्वेज यूज करते हैं ना स्कूल में, हर चीज का कोड लैंग्वेज यूज करते हैं, वो भी क्या करेगा उस वर्ड का कुछ कोड लैंग्वेज। वो किसको मालूम है? व्हाट्सएप को ही मालूम है कि दोबारा जैसे विपाशा हमको सेंड की, हमको आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो सिग्नल जैसे वो मेरे पास आया, वो आया थ्रू कोड। मतलब अगर कोई उसको हैक भी कर लेगा तो उसको सिर्फ कोड पता चलेगा, एक्चुअल विपाशा ने क्या सेंड किया है उसको पता नहीं है। क्यों? प्रेजेंटेशन लेयर ने वो काम कर दिया, उसको एनकोड कर दिया। जैसे वो डेटा मेरे पास आया, वो व्हाट्सएप में फिर घुसा, व्हाट्सएप देखा कि भाई ये डेटा क्या मेरे लिए ही सेंड किया हुआ था, हाँ मेरे लिए ही सेंड किया हुआ, तब वो क्या करेगा, उसको फिर से चेंज कर देगा एक्चुअल सिग्नल। ये काम करेगा प्रेजेंटेशन। दूसरा काम क्या? सेशन लेयर। सेशन मतलब तुम देखोगे कि जैसे हम ये चैटिंग किए, हम यहां तक चैटिंग किए, करेंट टुडे, अभी हम अभी चैट किए, ये यहीं तक हुआ, ये कल चैट किए थे, या 2 घंटा पहले चैट किए थे, ये सब एक सेशन होता है। मतलब द कनेक्शन, कि ये कनेक्शन से इतने टाइम तक वैलिड है, इसके बाद वो वैलिड नहीं है। हम मान लो कि इस विपाशा से चैट कर रहे थे, आधा घंटा के लिए हम दूसरे काम में एंगेज हो गए, तब तक वो क्या करेगा, इस चैनल को खुला रखेगा नहीं, इसको काट देगा। क्यों? जब वो कनेक्शन को जब तक खुला रखेगा, दो प्रॉब्लम, एक तो ये रास्ता एंगेज है, कोई दूसरा इसको यूज नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर ये चैनल खुला हुआ तो इसके अंदर कोई दूसरा हैकर भी घुसने का चांस है। तो जैसे एक टाइम तक अगर हम दोनों कम्युनिकेट करें, वो हम दोनों चैनल काट देते हैं, दोबारा करना शुरू करें, दोबारा वो फिर से है, वो दोबारा उसको रीच करेगा, उसको सेशन कहते हैं, वो सेफ्टी पर्पस। फिर है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है कि भाई वो कंफर्म करता है कि ये मेरा डेटा ठीक जगह ठीक पैकेट्स में जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट का होता है ना, हम लोग ट्रांसपोर्ट में ट्रक में माल लोड करते हैं कि भाई पहले ये पहुंचना चाहिए, फिर ये पहुंचना है, यार ये हल्का माल इसको ऊपर रखो, ये भारी माल इसको नीचे रखो। ट्रांसपोर्ट में तो मेरा भी डेटा जब जाएगा, कौन सा पैकेट पहले जाएगा, पैकेट स्विचिंग, हम पूरे पार्ट को छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं ताकि वो इजीली नेटवर्क के साथ जाए। कौन सा पैकेट पहले जाएगा, कौन सा पैकेट बाद में जाएगा, कौन सा पैकेट किस डेस्टिनेशन में जाएगा, सबको हमको ग्रेडिंग करना पड़ेगा, लेवल। कभी फ्लिपकार्ट से माल आया है आपके पास? फ्लिपकार्ट का पैकेट देखो ना, कितना सारा लेबल लगा हुआ रहता है, कितना सारा सिग्नल कोड लिखा हुआ रहता है। क्या है वो? मतलब सबका होता है कि भाई ये पैकेट यहां जाएगा, ये पैकेट यहां जाएगा, ये पैकेट यहां जाएगा। सिमिलरली हम जो सिग्नल भेजे
वो किस पाथ के थ्रू जाएगा, किसके पास जाएगा, ताकि वो जाके वहां जाके वो डिकोडिंग हो, और सब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास हिसाब रहता है, ट्रांसपोर्ट करता है वो डेटा। नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन ठीक है, तो हम बोल रहे हैं चेक करता है कि अगर मेरा वो सोर्स ठीक है तो हम उसको लेंगे, वरना लेंगे नहीं। बिपाशा को सिग्नल सेंड की, वो मेरे यहाँ पे रिसीव होगा क्योंकि वो व्हाट्सएप को मालूम है। लेकिन अगर मान लो गलती से मेरे पास ऐसा नेटवर्क आ गया जो कि हम नहीं पहचानते, ठीक है, वो उसको लेगा नहीं, वो सिग्नल को ड्रॉप कर देगा। नेटवर्क लेयर का ये, ठीक है। नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करता है कि मेरा जो पैकेट्स जा रहे हैं वो ठीक डेस्टिनेशन पे जा रहा है या नहीं, वो ठीक सोर्स से शुरू हो रहा है या नहीं। ये तो पैकेट करके भेज दिया, सही जगह पे गया या नहीं इसकी गारंटी ये है नेटवर्क। फाइनली डेटा लिंक ये चेक करता है कोलिजन एंड एरर, जो कुछ देर पहले बताया कि ट्रांसपोर्ट में कहीं पे प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे कोलिजन हुआ, कहीं पे डेटा क्रैश कर गया, फिर से भेजो रे, ये माल नहीं पहुंचा, ये दोबारा रिसेंड करना पड़ेगा, ये सब ये डेटा लिंक फिर से शुरू से करके आया डेटा लिंक। अब देखा सब कुछ लाइन पे, हाँ भाई ठीक है अब जाओ, तब जाके फिजिकल। इतना सब करने के बाद इतना सब काम हो गया, मतलब ये तो सिर्फ व्हाट्सएप में था, ये तो बिपाशा इसको देखते, ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है एंड्रॉइड। आपका फोन अगर आईफोन हो तो आईफोन करता, ओएस करता, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब काम कर रहा है। हमको घंटा फर्क पड़ा, हम खाली व्हाट्सएप ऑन किए, टाइप किए, एंटर मारे, कैसे गया वो हमको जाने की जरूरत नहीं, वो सही जाने की एंड्रॉइड कर रहा है आपके लिए नेटवर्किंग, लेकिन वो मेंटेन कर रहा है, लेयर बाय लेयर भेज रहा है। और जब सारा चेकिंग कर लेगा, हाँ भाई सब कुछ मेरा देख रहा है, ठीक ठाक है, अब क्या करेंगे? हम उसको फिजिकल लेयर मतलब तार पे डाल देंगे। अब मेरा वो सिग्नल चाहे तार के थ्रू जाए या वायरलेस जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाए या रेडियो वेव जाए, हमको मतलब नहीं, मतलब हम उसको चैनल पे डाल देंगे। अब क्या होगा? ये चैनल मेरे यहां पहुंचा, मतलब वो तार मेरे यहां पहुंचा। अब हम देखेंगे कि भाई मेरा डेटा जो आया उसमें कोई वायरस नहीं आया, कोई एरर तो नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं, अगर है तो उसको तोड़ दिए, नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं है तो ठीक है भाई, ठीक है सर। नेटवर्क के पास गया, ये पैकेट मेरे लिए आया था तो हम इसी बिपाशा से आया तो ये चेक करेगा। ट्रांसपोर्ट देखेगा, पैकेट को खोलेगा, पैकेट को सब वो अनलेबल करेगा, ये पैकेट मेरे लिए था तो ये हल्का माल एक के बाद लगाएगा, अच्छा इसको ये पहले होना चाहिए, इसको बाद होना चाहिए, इसको होना सब, अब लाइन से लगाया। फिर सेशन गया, बोला ये पूरा माल आपको एक बार में आया है, पूरा सेशन ये एक बार में आया। देखो जब फोटो सेंड करते हो, 4 फोटो एक साथ सेंड किए, चारों को एक साथ पैकेट में दिखाएगा क्योंकि वो एक सेशन में आया। तुम 2 मिनट बाद दूसरा फोटो भेजो, वो अलग पैकेट बनाता है, वो अलग सेशन में गया, सेशन आया। फिर प्रेजेंटेशन, हमने उसको बोला वो कोडिंग करके भेजा था, वो फिर उसको डिकोड किया, अगर वो नेटवर्क उसको पास किया तो वो देखेगा भाई वहां बिपाशा से आया है तो हाँ तभी हम उसको लेंगे, तब उसको वो डिकोड किया, डिकोड करके मेरे व्हाट्सएप में दिखाएगा, बिपाशा लिख के भेजिए सर आई कैन अंडरस्टैंड। इतना कुछ हुआ हम और उन दोनों बीच में, हम लोग कुछ पता नहीं चला, 1 सेकंड भी नहीं लगा डेटा आने में, इतना कुछ काम हो। दिस इज हाउ माई लेयर्ड नेटवर्क इज बीइंग क्रिएटेड एंड दिस इज नोन एज OSI मॉडल, फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये ओल्ड मॉडल है, ये 7 अलग अलग लेयर में काम करता है और उसको अभी छोटा एडवांस बना के TCP/IP मॉडल कर दिया है जो कि 4 मॉडल, लेकिन काम वही है। ये तीनों अलग अलग लेयर है, तीनों फोन में ही होता है, इसलिए इसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, और ये तीनों नेटवर्क लेयर में होता है, इसको अलग अलग इसको। सो दिस इज द एंड ऑफ योर सेकंड सेशन. The network will take one more class to end. That will for the third session. Hope you will enjoy the class also. अगर इसमें यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी टाइम में आपको कुछ समझ में दिक्कत हो रहा है, प्लीज फील फ्री मी टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम. थैंक यू.